रोशन तू माइक ऑन रखा है अभी भी? हाँ अरे तेरा लेवल कितना है फ्री फायर में? फोर्टी लेवल है 40। सही में? हाँ गुड मॉर्निंग क्लास। मैम मेरा कहाँ है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Let's start our session. गुड मॉर्निंग मैम। Now, as we have completed the last chapter, we will start another chapter today. That is adverb, chapter number 9. Page number 41. All of you have books? यस मैम। यस So, मैम। मैम we will start. I request you to mute your mics so that the class can go uninterrupted. If you have any doubt, you can ask me personally on WhatsApp. ओके मैम। Okay, we will start with what is an adverb. A word which adds something to the meaning of a verb is called an adverb. It tells us how the action is done. Adverb helps us to describe events. We all know what do you mean by a verb. हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बताया था what is a verb. Verb is anything that states action or facts, right? For example, I am writing. So here the verb is write. Understood? Now we will start with adverbs. A word which adds something to the meaning of a verb is called an adverb. Now adverb can be classified into following 6 categories. First is adverbs of manner. An adverb of manner shows us how or in what manner an action is done. For example, the girls were talking quietly. You can see that the girls, अगर मैं ये भी बोलूं कि the girls are quiet, तो ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है the girls are talking quietly. वो लोग धीरे बात कर रही थी. मैं ये भी बोल सकती हूँ कि लड़कियां बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे बताया है quiet. Then the dog barked loudly. Dog barked. ये भी बोल सकते थे अपन, तो सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं द डॉग बार्क्ड लाउडली का मतलब वो जोर से भौंक रहा था. ठीक है, समझ में आ रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर. जस्ट अ सेकेंड. Now next is adverb of place. An adverb of place shows the place where an action takes place. An adverb of place answers the question where. The children followed the teacher everywhere. बच्चे टीचर के पीछे पीछे हर जगह घूम रहे थे. The teacher has came back. The teacher has come ये भी बोल सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं the teacher has came back, मतलब टीचर वापस आ गया है. Let us go, हम लोग ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन let us go out, तो हम लोगों ने out बाहर जाएं, तो हम लोगों ने place स्पेसिफाई कर दिया है. Next is adverb of time. The adverb of time shows us the time when an action takes place. Ad मतलब कहाँ पे एक्शन हुआ है. It answers when. He is going to Mumbai shortly. हम लोगों को इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, वो मुंबई जा रहा है जल्द ही. I shall go to the market tomorrow. मैं मार्केट जाऊंगी कल. मैंने अपना पैर, मुझे पैर में लग गया कल. हाँ, मुझे पैर में लगा था कल.
अब adverbs of degree. An adverb of degree shows the degree of action of its verb. An adverb of degree answers the question how much / how far. Sheila runs very quickly. शीला बहुत तेजी से दौड़ रही है. How much, how far. देख रहे हैं, how much और how far. He writes quite beautifully. वो बहुत सुंदर लिखता है. Good morning, ma'am. Captured the sailors most cruelly. कैप्टन अपने sailors के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच, जैसे कि मोस्ट, वेरी, क्वाइट अगर ये आ जाए तो मतलब ये जो पिंक से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो एग्जांपल्स में, ये आपको बता देंगी ये कौन सा एडवर्ब है. जैसे मान लो अगर आया वेरी, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर. An adverb of frequency shows how many times an action takes place. An adverb of frequency answers the question how often. मैं दिन में एक बार कॉफी पीती हूँ. तो मैंने बता दिया कि मैं कितने बार कॉफी पीती हूँ. मैंने बता दिया मैंने दिन में एक बार कॉफी पीती हूँ. I have seen Lucknow only once in life. मैंने सिर्फ लखनऊ को एक बार देखा है अपनी जिंदगी में. तो ये बता दी कि उसने एक ही बार देखा है. तो अगर मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में ट्वाइस आ रहा है, वंस आ रहा है, तो आप उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं. Interrogative adverbs are used to ask question about what the verb state. अब interrogative मतलब तो आप लोगों को पता ही है, क्वेश्चन पूछ रहा है. Where do you live? How do you solve this sum? मेरी आवाज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Interrogative Yes, okay, fine. Yes, ma'am. Interrogative adverbs are used to ask question about the verb state. Where do you live? How did you solve this sum? How are you today? तो मतलब जहाँ where, जहाँ question आ जा रहा है, that is called an interrogative adverb. तो इसी तरह से आपको एक्सरसाइज जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. टर्न करिए next page number पे. use the adverb in the following sentence and name the verb with which each is used. देखिए I see थी, इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा एडवर्ब है. ठीक है. we फर्स्ट वाला आपको किया हुआ है, we were treated kindly. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है एडवर्ब को और आपको बताना है कि कौन सा वर्ब है यहाँ पे. ठीक है. वर्ब आप लोगों को क्लियर है? वर्ब क्या होता है? इट इज एनी एक्शन टेकिंग प्लेस. कोई भी एक्शन हो रहा होगा तो वो वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल वी वेयर ट्रीटेड काइंडली. तो इसमें एडवर्ब क्या है? एडवर्ब कौन सा है? अंडरलाइन किया हुआ है वहां पे. काइंडली को अंडरलाइंड है वहां पे फर्स्ट वाला. Yes, ma'am. है? कोई ध्यान नहीं दे रहा था ना. मैं फर्स्ट एग्जाम्पल बता रही. अभी पेज पलटने की आवाज आ रही है. We were treated kindly. तो इसमें आपका एडवर्ब है काइंडली. ठीक है. और वर्ब क्या है? ट्रीटेड. यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रीट. हमें हमें पूरी तरह से दयावान तरीके से ट्रीट किया गया. ट्रीट यानी मतलब आदर सत्कार किया गया. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में वर्ब है हमारा ट्रीटेड और एडवर्ब है काइंडली. सिमिलरली नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, आई सी थिंग्स डिफरेंटली. इसमें बताइए एडवर्ब कौन सा है? डिफरेंटली. वेरी गुड. अब इसमें वर्ब क्या आएगा? सी. गुड. मतलब समझ में आया आप लोगों को?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को आप असाइनमेंट में करेंगे। Yes, और ma'am. नेक्स्ट बी वाले का भी मैं फर्स्ट समझा रही हूँ, फर्स्ट 5 समझा रही हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आंसर चेक करेंगे। अंडरस्टूड? तो बी, अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस एंड राइट्स इट काइंड। सबसे पहला दिया हुआ है आप लोगों का, द बॉय वाज वॉकिंग फास्ट। तो इसमें एडवर्ब कौन सा है? Manner. Adverb of manner. एडवर्ब फास्ट है, एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हुआ है। ठीक है। सिमिलरली दे वेर टॉकिंग लाउडली। अब इसमें एडवर्ब कौन सा है? Loudly. Loudly. ये कौन सा एडवर्ब है? Adverb of Manner. Manner. वेरी गुड। Hello, ma'am. हाँ हाँ, ही Hello. लव्ड हर ट्रूली। तो इसमें क्या आएगा? Ma'am. Truly. Truly. ट्रूली है। और ये कौन सा एडवर्ब है? Adverb of manner. Adverb of manner. Place. गुड एवरीवन। सभी को पता है ना क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हम लोग पता कर रहे हैं? Yes, Yes, ma'am. अब लेट अस गो आउट, इसमें क्या आएगा एडवर्ब? Place. Out. आउट। आउट ये एग्जांपल में भी दिया हुआ है, Out. पीछे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, लेट अस गो आउट। आउट है। और ये कौन सा एडवर्ब है? Place. 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 एडवर्ब ऑफ। गुड गुड गुड। बी सैट इनसाइड, इसमें एडवर्ब कौन सा है? Inside. Inside. साइड। और ये कौन सा एडवर्ब है? Adverb of Adverb of place. place. एडवर्ब ऑफ प्लेस है। Adverb of एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो जो बाकी बचे सारे आंसर्स हैं आप खुद ही करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर्स को। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। ma'am. तो अगर आप लोगों को अभी कोई डाउट है, अभी तक मतलब से शुरू से जो इस टर्म के पोर्शन में चैप्टर में आप लोगों को डाउट है, we will take another class today. Maybe I will send you the timing. Maybe we can take a class at 2 o'clock, and as well as maybe we can take a class at usual 7:30 p.m. I will send you the timings because हम लोग का सिर्फ एक ही चैप्टर लेफ्ट, एक ही चैप्टर बस बचेगा, तो उसको भी कंप्लीट करके we will complete the portion for second term. ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. अभी तक जो भी पोर्शन है सेकंड टर्म का, उसमें अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप बिटवीन 9 AM to 7 PM एट नाइट। ठीक है मैम? ये समझ में नहीं आया तो हम उसको यहाँ पे क्लास में एक्स्ट्रा क्लास टाइप से ले सकते हैं, तो हम लोग फिर सबका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है? एक बात, मेरी बात सुनिए, एक बार सभी अपना माइक ऑफ करिए, सभी अपना माइक ऑफ करिए, मेरी बात सुनिए। हम लोग जैसे ही सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, वी विल कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस लाइक आफ्टर 2-3 डेज। 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्लास टाइप से शाम को या दोपहर में क्लास करेंगे। जो आपकी रेगुलर क्लासेस है उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेजते रहूंगी कि ये आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आएगा। लेकिन हम लोग हर 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करेंगे। इस एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, तो सभी को आना कंपलसरी है इस एक्स्ट्रा क्लास में, सिलेबस खत्म होने के बाद। अभी तो आना ही आना है सिलेबस कंप्लीट होते तक, उसके बाद भी आपको कंपलसरी सभी को आना है। सभी को अपने कोई भी चैप्टर में सेकंड टर्म के पोर्शन में जिसको भी डाउट है वो उस समय पूछेगा।